आओ मजाમાં હમણાં 9:05 થઈ ને હોલ ખર્ચો બધું ઓડિયન્સ આવી ગયું. માન્ય શ્રી ડોક્ટર અમૃતભાઈ કડીવાલા એઓને હું વિનંતી કરું કે મંચ ઉપર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. કાર્યક્રમ દરમિયાન ખલેલ ન પહોંચે તે માટે પોતાનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી દઈશું. પોતાનો મોબાઈલ આપણે સ્વિચ ઓફ રાખીએ. આ વર્ષે પરમ પૂજનીય સત્સંગ ચાલક માન્ય શ્રી સુદર્શનજી નું માર્ગદર્શન આપણને મળવાનું છે એ આપણા માટે આનંદ અને ગર્વની વાત છે. કાર્યક્રમમાં દીપ પ્રજ્વલનથી કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે. ત્યારબાદ પરિચય, સ્વાગત, અભિવાદન થશે. વ્યક્તિગત ગીત થશે. ઉદ્બોધન થશે. છેલ્લે એકતા મંત્ર દ્વારા આજનું આપણું વ્યાખ્યાન સંપન્ન થશે. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મહાનુભાવોને હું નમ્ર વિનંતી કરું કે દીપ પ્રજ્વલન દ્વારા આપણી આજની આ વ્યાખ્યાનમાળાનો શુભારંભ કરે. શુભં કરોતિ કલ્યાણં આરોગ્યં ધનસંપદા શત્રુબુદ્ધિ વિનાશાય દીપજ્યોતિર્નમોસ્તુતે. દીપજ્યોતિ પરબ્રહ્મ દીપજ્યોતિર્જનાર્દન દીપો હરતુ મે પાપં દીપજ્યોતિર્નમોસ્તુતે. એ આપણને આ વ્યાખ્યાનમાળા દરમિયાન ₹1500 માં 12 વેચાણ ઉપલબ્ધ છે. એ પ્રમાણે પરમ પૂજનીય શ્રી ગુરુજીના ચિત્રનું એક પુસ્તક ચિત્રાંજલિ નામે સાથે જોડાયેલા છો. ધરતી મુદ્રણાલય, રાજકલ્પ મુદ્રણાલય આ પોતાના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે. અનેકવિધ સામાજિક સેવાઓમાં, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પણ આપ શ્રી જોડાયેલા છો, જેવી કે સાધના સાપ્તાહિક, ધરતી વિકાસ મંડળ, શ્રી ઉમિયા મંદિર ભુજા આવી અનેકવિધ સંસ્થાઓમાં માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. બાળપણથી આપ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના સ્વયંસેવક છો. વર્તમાનમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ રાણી ભાગના માનનીય ભાગ સંચાલક તરીકે આપ શ્રી માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છો. માન્ય શ્રી માણેકભાઈને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે મંચસ્થ મહાનુભાવનો પરિચય આપણને કરાવશે. આજે આપણા સૌનું સદભાગ્ય છે કે વ્યાખ્યાનના મારા ત્રીજા વર્ષે આપણને એવા મહાનુભાવો માર્ગદર્શન કરવાના છે. મંચમાં વિરાટમાં સૌથી વચ્ચે બેઠેલા છે. એમને આપણે સૌ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પરમ પૂજ્ય સત્સંગ ચાલકજી માનનીય પૂર્વ સદસ્યશ્રી નામે ઓળખીએ છીએ. એમનું પૂરું નામ શ્રી કુપલ્લી સીતારામૈયા સુદર્શનજી. એમને એન્જિનિયરિંગમાં ટેલિકોમ્યુનિકેશનનો અભ્યાસ કરેલો છે. જબલપુર એમનું અભ્યાસનું ક્ષેત્ર રહ્યું છે. મૂળ તેઓ કર્ણાટકના છે. 1955થી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવકના પ્રચારક તરીકેની જવાબદારી નિભાવે છે. છેલ્લા 5 દાયકાથી
સંઘની વિવિધ જવાબદારીઓ એ વહન કરી શક્યા છે. મધ્ય ભારતના પ્રાંત પ્રચારક, પૂર્વ ક્ષેત્રના પ્રમુખ, અખિલ ભારતીય શારીરિક પ્રમુખ, અખિલ ભારતીય બોલી પ્રમુખ ને સહકાર્યવાહ જેવી એવી જવાબદારીઓ અત્યાર સુધી નિભાવી છે. આજે રાષ્ટ્રીય શિક્ષક સંઘ અને પરિવારની અનેક સંસ્થાઓને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે. એમની માતૃભાષા કન્નડ છે છતાં હિન્દી, મરાઠી, આસમિયા, બંગાળી, ઉડિયા, પંજાબી અન્ય ભાષાઓનું પ્રભુત્વ છે. પંજાબની સમસ્યા અને પૂર્વાંચલની સમસ્યાનું ઊંડું અધ્યયન છે. રાષ્ટ્રીય શીખ સંગઠનના એ માર્ગદર્શક છે. મૌલિક ચિંતક, વિચારક, લેખક અને સંગીતના જાણકાર છે. આટલો ટૂંકો પરિચય છે. પછી સૌથી એની બાજુમાં જમણી બાજુ બેઠેલા છે આપણે સૌ જાણીએ છીએ ડૉક્ટર અમરભાઈ કડીવાળા. બાળપણથી એ પણ સમીક્ષક છે. એમણે એન્જિનિયરિંગમાં સોલિડ ટેસ્ટનો અભ્યાસ કરેલો છે અને લેખો અને સંશોધન દ્વારા ડૉક્ટરેટની પદવી મેં પ્રાપ્ત કરી છે. કેટલી મહેતાની કંપનીમાં એ સેવારત છે. બાલ્યકાળની સ્વયંસેવાઓને કારણે જમીન સ્તરથી પ્રાંત સુધીના અનેક જવાબદારીઓ સંભાળી છે. હાલ પ્રાંતના માનવી સંચાલકની દાયિત્વ વહન કરી રહ્યા છે. સેવા ભારતી, ડૉક્ટર ઇકબાલ સ્મારક સમિતિ, ગુરુજી જનાર્દન સ્મારક સમિતિ અનેક સંસ્થાઓમાં આપણે માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છીએ. મારી જમણી બાજુ સૌથી પહેલા બેઠા છે વલ્લભભાઈ કાવડિયા. મણિનગરનું નિવાસસ્થાન છે. વિજ્ઞાન શિક્ષકની જીવનની શરૂઆત કરી છે અને સાવલિયા ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રી સુધા એનો ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીનું ઉત્પાદન કરીને એ ઇન્ડસ્ટ્રીનો એનો વિકાસ કર્યો છે. સાથે સાથે સામાજિક ક્ષેત્ર, આરોગ્ય, સ્ત્રી કેળવણી વગેરેમાં ખૂબ રસ ધરાવે છે. હાલમાં તેઓ પરિણામ વિભાગના માનનીય સંચાલકનું દાયિત્વ કરી રહ્યા છે. સેવા ભારતી, માધવ સુખીનાથ, સરદાર પટેલ મહિલા વાણિજ્ય મહાવિદ્યાલય વગેરે સંસ્થામાં એનું વર્કનું જ્ઞાન છે. સૌથી છેલ્લે માનનીય શ્રી ગૌતમભાઈ સમ્રાટ, મણિનગર નિવાસસ્થાન છે. શિક્ષણ કાર્યથી સ્વયંસેવક, વિવિધ જવાબદારી વહન કરતા પરિણામ વિભાગના કાર્યરત પ્રમુખની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. ઓઝરી મેન્યુફેક્ચરિંગનો વ્યવસાય છે. સામાજિક ક્ષેત્રે સામાજિક ભારતીય સિંધુ સભા ગુજરાત પ્રાંત પ્રમુખનું દાયિત્વ સંભાળે છે. માધવ સુખીનાથના ટ્રસ્ટી છે. વિવિધ સંસ્થાઓનું માર્ગદર્શન છે. વંદના દેવીના અનુવાદ કુમારી દેવીના અગ્રવાલ. અમૃતભાઈ પૂર્વી ચૌહાણ, કુમારી પૂર્વી ચૌહાણ તિલક કરીને સ્વાગત કરશે. ગૌતમ સમ્રાટ ડૉક્ટર અમરભાઈ કડીવાળાને સારોડે અભિવાદન કરશે. વલ્લભ બાપા માનનીય સુદર્શનનું અભિવાદન કરશે. પુનઃ બધા પોતાનો મોબાઈલ જરા ચેક કરી લઈશું. સ્વિચ ઓફ કરવા વિનંતી છે. હવે વ્યક્તિગત ગીત થશે. ત્યારબાદ પરમ પૂજનીય સત્સંગ ચાલક માનનીય શ્રી સુદર્શનજી દ્વારા આપણને ઉદ્બોધન મળશે. માન્ય વ્યક્તિગત ગીત. शतन मन माधव चरण में, शतन मन माधव चरण में, शतन मन माधव चरण में, शतन मन
आपकी पीयूष वाणी शब्द को भी धन्य करती, आपकी आत्मीयता थी युगल नयनों से बरसती, और वह निश्चल हंसी जो गूंज उठती थी गगन में। शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में। दुख सुख निंदा प्रशंसा आपको सब एक ही थे, दिव्य गीता ज्ञान से युक्त आप तो स्थित प्रज्ञ ही थे। भरत भूके पुत्र उत्तम आप थे युग पुरुष जन्मे। शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में। मेरुगिरि सामन अड़िग था आपने पाया महात्मन, त्याग त्याग कैसा आपका वह, तेज साहस शील पावन। मात्र दर्शन भस्म कर दे घोर षडरि एक क्षण में। शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में। ज्ञान में तो आप ऋषिवर दिखते थे आद्य शंकर, और भोला भाव शिशुषा खेलता मुख पर निरंतर। दीन दुखियों के लिए थी द्रवित करुणा धार मन में। शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में। सिंधु सारं धीर मानस था कब पाई किसी ने, आ गया संपर्क में जो धन्यता पाई उसी ने। आप योगेश्वर नए थे चल भरे कुरुक्षेत्र रण में। शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में, शत नमन माधव चरण में। गुजरात प्रांत के प्रांत संघ चालक मान्यवर अमृत भाई कड़ीवाला, माधव स्मृतिनाश के मान्यवर विश्वस्तगण श्री वल्लभ भाई सावलिया, श्री माणिक भाई पटेल,
श्री गौतम भाई सम्राट तथा उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मानव स्मृति न्यास के माध्यम से उसके तत्वावधान में परम पूजनीय गुरु जी के संबंध में यह तीसरी व्याख्यानमाला हो रही है। 2 वर्ष पूर्व श्री बाबूराव जी वैद्य ने तथा गत वर्ष उस समय के हमारे अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख श्री रंगाहरी जी ने परम पूजनीय गुरु जी के संबंध में 3 व्याख्यान दिए थे। इस वर्ष मेरी बारी है। माननीय बाबूराव जी को परम पूजनीय डॉक्टर साहब और परम पूजनीय गुरु जी दोनों को देखने का और उनके मार्गदर्शन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री रंगाहरी जी ने अपने 2 अन्य सहयोगी बंधुओं के साथ मिलकर परम पूजनीय गुरु जी का जितना भी प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य था उस सब का आलोड़न करते हुए 12 खंडों में गुरु जी समग्र का संकलन किया, जिसका अब गुजराती भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। परम पूजनीय डॉक्टर साहब को देखने का सौभाग्य मुझे महीने नहीं मिला। 20 जून 1940 को परम पूजनीय डॉक्टर साहब ये लोग छोड़ करके चले गए। उसी वर्ष शायद जुलाई अगस्त में जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब मैं संगत का स्वयंसेवक बना। उस समय तो छोटा ही था, डॉक्टर कौन है क्या है ये समझना भी मेरे लिए कठिन था। लेकिन परम पूजनीय गुरु जी को 1947 में देखने का अवसर प्राप्त हुआ, जब नागपुर, वर्धा, भंडारा और चंद्रपुर जिले के पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकों का एक शिविर नागपुर में अंबाझरी में हुआ था। 5000 स्वयंसेवक उसमें उपस्थित थे। उसी साल मैंने मैट्रिक उत्तीर्ण किया था और उसके बाद इस शिविर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना बड़ा शिविर देखने का ये मेरा पहला अवसर था। उसके बाद मैं नागपुर में अपने जबलपुर में पढ़ने के लिए आ गया और 6 वर्ष तक जबलपुर में रहा। तो उसी बीच संघ पर प्रतिबंध भी आया। प्रतिबंध हटने के पश्चात 1949 से लेकर 1953 तक प्रतिवर्ष जब गुरु जी का प्रांत में प्रवास होता था उस समय उनको देखने का मौका मिलता था। उसके पश्चात सन 54 में जब प्रचारक बना तो सन 54 से लेकर के और 63 तक प्रतिवर्ष 3 बार परम पूज्य गुरु जी के दर्शनों का, उनको सुनने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना सौभाग्य प्राप्त होता था। एक तो मैं विभाग प्रचारक था, इसलिए परम पूज्य गुरु जी जब आते थे उस समय संघ शिक्षा वर्ग में, और उसके पश्चात उस समय जो प्रति सभा होती थी वो इतनी बड़ी नहीं होती थी जैसे आज होती है। आज तो प्रति सभा में 1100 के करीब प्रतिनिधि रहते हैं। उस समय जो है फोरम पूरा करने के लिए आसपास के 2-3 प्रांतों के विभाग प्रचारक बुलाए दिए जाते थे, इसलिए मुझको भी और आने का मौका मिल जाता था। सन 64 में जब प्रांत का दायित्व मिला तब फिर परम पूज्य गुरु जी से 3 बार तो बैठकों के निमित्त से, संघ शिक्षा वर्ग के निमित्त से और उसके पश्चात और प्रभाव
उस समय पर उनकी भेंट होती थी और ऐसे समय में उनके साथ में मिलने का, बातचीत करने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त होता है। आज के जितने साधन उपलब्ध हैं, टेप रिकॉर्डर वगैरह, ये उस समय पर नहीं थे और इसलिए परम गुरु जी का भाषण वगैरह जब लिखना होता था उस समय टिक पद्धति से लिखते थे। 5-6 लोग हम लोग बैठ जाते थे और गुरु जी का जब भाषण शुरू होता था, जब भी हम लिखना प्रारंभ करते थे, मैं जितना लिख पाता था और जितना आगे का याद कर पाता था वो करके टिक कर देता था, मैं आगे लिखता था, वहां से वो व्यक्ति प्रारंभ करता था। इस प्रकार चक्कर लगा करके और परम गुरु जी के सारा भाषण शब्दशः हम सब लिखते थे, उसका संकलन किया जाता था। यह भी सौभाग्य और मुझको उस समय प्राप्त होता था और संघ शिक्षा वर्ग के समय में भी और परम गुरु जी और अन्य सारे लोगों के भी भाषण सुनने का, भाषण लिखने का मौका उस समय पर प्राप्त हुआ करता था। और इसलिए अगर ये कहा जाए कि मेरे विचारों को आकार देने में सबसे बड़ा भाग अगर किसी का रहा है वो परम ऋषि गुरु जी का रहा है। गुरु जी एक अतिरिक्त मानी भैया जी दानी, एकनाथ जी रानडे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री बालासाहेब हरदास, इनके विचारों का भी और मेरी सोच पर, मेरे चिंतन पर बहुत बड़ा असर रहा है। वास्तव में 1954 में जब प्रचारक निकला तो हम सब जानते हैं कि प्रतिबंध के काल के बाद बहुत से प्रचारकों को घर वापस लौट जाना पड़ा था और नए निकलने वाले प्रचारकों की संख्या क्रम और कुछ 52 में ही थोड़ा बहुत प्रारंभ हुआ था। तो 53 या 54 में जो प्रचारक निकले उनमें से मैं भी एक था और इसलिए नए निकलने वाले प्रचारकों को किस प्रकार से स्नेह के साथ, प्रेम के साथ उनको आगे बढ़ाना, उनका दिशा निर्देश करना, यह कार्य परम गुरु जी करते थे। उसका सौभाग्य भी मुझको प्राप्त हुआ है, उसका मैंने अनुभव प्राप्त किया है। मैं विभाग में चला था मध्य प्रदेश का, तो उस समय जैसा मैंने बताया कि प्रतिनिधि सभा के समय मध्य प्रदेश और विदर्भ के भी विभाग प्रचारकों को बुला लिया जाता था। मैं भी उसमें आ गया था। दोपहर को चाय का समय था और चाय नाश्ता होकर के जब ही उठ रहे थे तो उस समय गुरु जी वहां बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया, अरे भाई यहाँ, अरे भाई तुम जिस विभाग के समय प्रचारक हो वो तो किसी समय एक प्रांत था, एक मध्य प्रदेश पहले एक C क्लास स्टेट बन चुका है, तो एक प्रांत था। उसमें अगर थोड़ा सा और महाकौशल का थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का झांसी इत्यादि का हिस्सा मिला करके उसको एक प्रांत बना दिया जाए और उस प्रांत का तुमको प्रांत प्रचारक बना दिया जाए तो तुम्हारा दिमाग कितना चढ़ जाएगा। एकदम अनपेक्षित प्रश्न था। मैंने कहा गुरु जी दिमाग चढ़ने की बात तो है नहीं, मैं नहीं समझता कि प्रांत प्रचारक बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो मेरे अंदर है। उन्होंने कहा ये भी कहना ठीक नहीं है। संघ ने जो काम दिया वो काम अपनी संपूर्ण शक्ति और बुद्धि के साथ में करना, ये संघ के सदस्यों के सामने लक्ष्य होना चाहिए। मैंने कहा एक अमृत वचन में मैंने ये पढ़ा, उस समय संघ शिक्षा वर्ग अमृत वचन उसमें ये था कि संघ ने जो काम हमको दिया है उसको पूरी शक्ति बुद्धि के साथ में करना चाहिए। अगर उसमें हम सफल हो गए तो सफलता संघ की और उसमें असफलता आ गई तो उसका भी दोष संघ था कि उसने गलत आदमी चुना। बोले हाँ अमृत वचन तो ठीक है लेकिन इस बात को ध्यान में रखना। उस समय मुझको मालूम नहीं था कि मुझको प्रांत प्रचारक बनाने का और एक प्रकार का षड्यंत्र रचा कर रहा है। क्योंकि उसी साल जब मैं संघ शिक्षा वर्ग में जबलपुर में आया तो हमारे उस समय पर हमारे प्रांत प्रचारक थे भाऊ साहब उसको थे।
तो उन्होंने मुझको अलग ले जा करके कहा कि देखो भाई, अब की बार जब तुम पहले तुमने खबर कर दी थी कि अब की बार तुम आओगे तो अपना सब सामान लेकर के आना। तो मैं अपने विभाग संचालक से मिलकर के कहा कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ है और इसलिए मैं अपना सामान लेकर के जा रहा हूँ। तो गड़बड़ बात है। वहां आने के बाद फिर भाव साहब ने मुझको अलग ले जाकर के बताया कि भाई तुमको मध्य भारत प्रांत का प्रांत प्रचारक बनाना। भाव साहब मध्य भारत प्रांत से विभाग प्रचारक थे तो इतने बड़े हैं कि जितनी मेरी आयु है उतनी उनकी संघ आयु है। तो ऐसे के ऊपर आप उसको प्रांत प्रचारक बनाए। तो ने कहा भाई एक बात ध्यान में रखना, काम करते समय पर 50-50% का विषय ध्यान में रखना, आधा तुम्हारा आधा हमारा, तो तुम अपना काम ठीक प्रकार से कर सकोगे। तो कहने का मतलब ये है कि उन दिनों में और इस प्रकार से और थोड़े से लोगों को साथ लेकर के नए नए प्रचारकों को दिशा निर्देश करना, उनको आगे बढ़ाना, छोटी छोटी मोटी गलतियां होती थी उसके अंदर जो है उनको योग्य प्रकार का मार्गदर्शन करना, इस प्रकार का गठन करने का और हमारे अधिकारी प्रयत्न करते थे। और मेरा भी सौभाग्य यह है कि मैं जो कुछ आज हूं उन सारे अधिकारियों का स्नेह, कृपा, दृष्टि जाने सब कुछ परिणाम। अभी बात सच है कि 2 व्याख्यानमालाएं हो चुकी हैं, ये तीसरी व्याख्यानमाला है और इससे स्वाभाविक है कि कुछ बातें ऐसी होंगी जिनकी पुनरुक्ति होगी, किंतु उसके लिए कोई उपाय नहीं है, ये स्वाभाविक भी है। सन 1893-94-95 में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखे थे, ऐसे 4 पत्र, और उन पत्र में उन्होंने लिखा था कि सन 1836 में जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ तो युग परिवर्तन की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ और ऋषि अरविंद ने यह कहा था कि युग संधि का काल 175 वर्ष का है। दिन और रात के बीच में सायंकाल होता है, रात और दिन के बीच में उषा काल होता है, इसको संधि काल कहते हैं। उसी प्रकार एक युग समाप्त होकर के दूसरा युग प्रारंभ होना, इसके बीच के काल को युग संधि का काल कहते हैं। तो 1836 में हम 175 जोड़े तो आता है 2011। 2011 से भारत का भाग्य सूर्य दुनिया में चमकना प्रारंभ हो जाएगा। स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार का उत्पन्न होना आवश्यक है कि जो इस कार्य को पूरा कर सके। उस युग संधि के काल में परम पूज्य श्री गुरु जी का जन्म हुआ है और विशिष्ट रूप से इसी कार्य को करने के लिए हुआ है। हमारे यहां पर यह माना गया है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में उतार और चढ़ाव आते हैं, वैसे राष्ट्र के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का विकास एक चक्रीय गति से होता है। हर उत्थान में पतन की संभावना होती है और हर उत्थान में पतन के बीज होते हैं और हर पतन में उत्थान की संभावना है। हम अपने सामने चक्र को ध्यान रखें। चक्र जब आगे चलता है तो उसका एक बिंदु परिधि के ऊपर का नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है और चक्र की धुरा जो है वो आगे बढ़ती जाती है। उसी प्रकार राष्ट्रों का भी है, या जो उत्थान और पतन का चक्र चलता है, इस चक्र में ही राष्ट्र जीवन भी आगे बढ़ता है। आगे उत्थान पतन का चक्र कितना चलेगा, ये इस बात पर निर्भर रहता है कि आपकी आरंभिक ऊर्जा कितनी है। किसी चक्के को हमने धक्का दिया तो एक 10 चक्कर लगा करके गया, हमने दुगना धक्का दिया 20 चक्कर लगा करके गिरेगा।
लेकिन हमने उसी चक्कर में एक ऐसी मोटर बैठा दी तो लगातार चलते रहेगा। इसी प्रकार राष्ट्रों का भी है। दुनिया में ग्रीस, रोम, बेबीलोनिया, मिस्र, ये इस प्रकार के राष्ट्र हुए कि जो पैदा हुए, उन्होंने उन्नति की, उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचे और उसके बाद जो उनका पतन हुआ तो दोबारा उठने का सामर्थ्य उनके अंदर नहीं था। वो काल के गाल में समा गए। आज वो केवल इतिहास के प्रश्नों में ही देखिए, बड़ी बड़ी सभ्यताएं और नष्ट हो गई, लेकिन हम हैं कि हम लगातार चल रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो हमारी जो ऊर्जा है वो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं होती। और इसलिए अपने राष्ट्र का एक विशिष्ट संकेत है कि प्रत्येक पतन के पश्चात पहले आध्यात्मिक पुनरुत्थान होता है, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नवोत्थान होता है। हम अगर पिछले 5000 वर्षों का इतिहास देखें, 5143 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का काल ये अपने राष्ट्र के पतन का काल था, क्योंकि राष्ट्र का मार्गदर्शन करने की जो दो शक्तियां थी उस समय, ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोनों का पतन हो चुका है। ब्राह्मण संस्था के पतन के प्रतीक थे द्रोणाचार्य, जिनके लड़के को दूध पीने को नहीं मिला तो उन्होंने जाकर के राजा की चाकरी कर ली। और क्षत्रिय संस्था के पतन के प्रतीक थे भीष्म पितामह, जिन्होंने राजा की सेवा करना, राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा करना, राजा से उजड़ी करके तो उसका समर्थन करना, इसको ही अपना कर्तव्य मान लिया था। और इसीलिए जिस समय द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग हुआ उस समय पर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कृतवर्मा, एक से एक बढ़कर कृष्ण प्रशांत धुरंधर, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको अच्छी तरह से समझने वाले, लेकिन मुंह बंद किए बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा कि इतने धर्मज्ञ लोग, शास्त्रज्ञ लोग इतना बड़ा अन्याय होकर के होते हुए भी चुप होकर के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने तय कर लिया कि धर्मराज्य की प्रतिष्ठापना करनी है तो ऐसे लोगों को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अन्याय होता हुआ देख करके भी जो चुप रहता है वो चुप रह करके भी अन्याय का सहभागी होता है, इसलिए उतना ही वो भी बात का पड़ा। और इसलिए उन्होंने धर्मराज्य की स्थापना करने की जो हिट लिस्ट बनाई थी उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा का नाम जोड़ दिया। और इसके महाभारत के युद्ध में उन सब का निष्पाद किया। उस समय पर जो आध्यात्मिक तत्वज्ञान अवतरित हुआ भगवान श्री कृष्ण के रूप में, वो था गीता का तत्वज्ञान। जिस तत्वज्ञान में अच्छा क्या है बुरा क्या है हम सब जानते हैं। अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, किसको मारेंगे? ये हमारे मामा, भाई, दादा, परदादा, ऐसे सारे लोग मेरे सामने खड़े हैं जिनकी गोद में मैं खेला हूं, इनको मैं मारूंगा। इससे अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। भगवान ने कहा तेरे अंदर ये कायरता कहां से आई? अनारे दुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकम कहां से आए? और उनको गीता का उपदेश देने लगे। लगातार 10 अध्यायों तक उपदेश देते रहे, लेकिन प्रत्येक बार एक नई समस्या खड़ी कर देता था, नया प्रश्न करता था। ऐसा क्यों? उसका उत्तर देते। ऐसा क्यों? फिर उसका देते। ऐसा क्यों? उसका ऐसा क्यों समाप्त ही नहीं हो रहा था। अंत में 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप का दर्शन कराया। जब अर्जुन ने विराट रूप का दर्शन देखा तो घबरा गया। उसने देखा कि जिसको मैं अपना सखा समझता था, अपना साथी समझता था,
ये संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं। इसके लाखों सिर हैं, लाखों हाथ हैं, कितने लोग उसके अंदर समा रहे हैं, कितने लोग उसमें से निकल रहे हैं, कितने ब्रह्मांड उसके अंदर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये सारा का सारा दृश्य दिखा, कहा भगवान मैं घबरा गया हूं, आप फिर से अपना सौम्य रूप धारण कर लीजिए। भगवान ने सौम्य रूप धारण किया और उसके पश्चात फिर जो 7 अध्याय बताए वो वही बताए, उसको वही बातें बताई जो पहले के 10 अध्याय में बताई। लेकिन उसके बाद हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब मान गया। और आखिरी में नट्टो मोह स्मृति श्रद्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मिगत संदेहः करिष्ये वचनं तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है तुम्हारी कृपा से और मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, इसलिए जो तुम कहोगे वो करने के लिए क्या प्रबोधनी के माध्यम से एक नई आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को नए रूप में, नई परिस्थिति में प्रस्तुत किया गया है। और उस महाभारत के युद्ध के अंदर जितने भी अन्यायकारी थे उनको मार करके धर्मराज्य की स्थापना की। यह काम लगभग 1200 साल का काल था। उसके बाद तक फिर धर्मग्लानि आती है और उस धर्मग्लानि के पश्चात गौतम बुद्ध का अवतार होता है, करुणा के अवतार। उस समय पर यज्ञ इत्यादि जो होते थे वो यज्ञ इत्यादि का पतन हो चुका और पतन होकर के केवल अपना मांसाहार करना है, इसलिए यज्ञ किए जाते थे। तो यह जब देखा उस समय पर करुणावतार भगवान बुद्ध हुए और उन्होंने अपनी सनातन परंपरा के सिद्धांतों को नए सिरे से प्रस्तुत किया और नए सिरे से प्रस्तुत करके बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। और वह भी जो है चारों तरफ फैला, भारत में भी फैला, भारत के बाहर भी फैला। इसका भी कालखंड कुछ 1200 साल का है। उसके बाद में उसमें भी ग्लानि आ गई और जब ग्लानि आ गई शंकराचार्य पैदा हुए तो उन्होंने बौद्ध मत की अनेक मान्यताओं को स्वीकार करते हुए फिर से नए सिरे से और अपने सारे तत्वज्ञान को प्रस्तुत किया, वेदांत की प्रस्तावना की और उस वेदांत के माध्यम से भारतवर्ष के अंदर जितने भी विभिन्न प्रकार के मत संप्रदाय थे और जो परस्पर आपस में लड़ते थे, कोई शैव है, कोई बौद्ध है, कोई शाक्त है, कोई वैष्णव है, ये सब परस्पर आपस में लड़ा करते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। उन सारों का समन्वय उस एक द्वैत तत्वज्ञान के अंदर करते और संपूर्ण भारतवर्ष में घूमते हुए फिर से उन्होंने धर्म की प्रतिष्ठापना की और फिर से देश में एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर अपने यहां बड़े पराक्रमी सम्राट, पराक्रमी साम्राज्य उत्पन्न हुए कि जिन्होंने चारों तरफ फैल करके और फिर से धर्मराज्य की स्थापना की, सुख और शांति का जीवन यहां पर रखा। हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया बन गया, लेकिन नवी शताब्दी आते आते तक फिर से जो है पतन प्रारंभ हो गया। हम अपनी ही चीजों को गलत समझने लगे। जिन लोगों ने जाकर के संपूर्ण दुनिया के अंदर अपनी संस्कृति का तृणवंत विश्व आर्यन कहकर के फैलाव किया था, उन्हीं लोगों ने कहना चालू कर दिया समुद्र यात्रा निषिद्ध है, समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो मैक्सिको में लक्ष्मी मंदिर कैसे निर्माण हुए, मैक्सिको में गणेश के मंदिर कैसे निर्माण हुए, मैक्सिको में देवा दुर्गा के मंदिर कैसे निर्माण हुए, शिव की पूजा सारी दुनिया में कैसे प्रचलित हुई। अगर लोग गए ही नहीं तो कैसे हुआ ये? गए थे, उसके अवशेष आज भी विद्यमान है। अभी कुछ ही दिन पहले और दिल्ली में इंडिजिनस, दिल्ली में जयपुर में जितने इंडिजिनस पेड़ हैं, यानी अध्यात्म से जुड़े हुए वो सारे के सारे लोग जिन्होंने इतने वर्षों में ईसाइयत के आक्रमण के पश्चात भी अपनी आध्यात्मिकता को अभी तक बचा करके रखा है, बहुत थोड़ी संख्या में हो गए। उन पर बड़े अत्याचार हो गए, उनको मारा गया, पूजा गया, खत्म किया गया, पूरी की पूरी संस्कृति को साफ किया गया, करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसको आज हम अमेरिका कहते हैं। उस अमेरिका के अंदर तो यही सब जिसको रेडियंस कहते हैं, इन्हीं सारे लोगों का वहां पर राज्य था।
11 करोड़ लोगों को मौत के घाट पर उतारा गया। आज तो उनके छोटे छोटे से इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं जिनको रिजर्व कहते हैं, वहां वो अपने परंपरागत पति को अभी भी बने हुए वो सब होता है। और उनको इस लेकर आशय हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर आध्यात्मिक आदमी जिंदा है और हिंदुस्तान जैसा देश हम लोगों को फिर से पुनः स्थापित करने में सब प्रकार का सहयोग दे सकता है। जो तो इनको इसलिए क्या था कि हम सब जगह जा सकते थे, गए थे, लेकिन ये आ गया कि समुद्र यात्रा निषिद्ध है। और कितना बड़ा नुकसान हुआ उसका। आज जो केरल के अंदर ये जो होपलास्थान की बात कर चल रही है, कैसे हुई? तो केरल में राजा थे समुद्री, तो ये 6वीं 7वीं शताब्दी की बात है। 7वीं शताब्दी में नया उसके पहले से ही अरब देशों के साथ में व्यापार के संबंध थे और अरब व्यापार यहाँ आया करते थे। यहाँ से सब प्रकार के मसाले इत्यादि सब लेकर के वहां जाते थे और वहां से यूरोप में पहुंचाया करते थे, मसालों के लिए प्रसिद्धता दी। बाद में इस्लाम आ गया तो वो मुसलमान बन गए बाद में। और समुद्री ने ये कहा यहाँ के व्यापारियों से कि भाई वो लोग आकर के व्यापार करते हैं, आप लोग क्यों नहीं जाते व्यापार करने? हम कैसे जाएंगे? क्यों? बोले समुद्र यात्रा निषिद्ध है। समुद्र यात्रा निषिद्ध है। क्या होता है समुद्र से? नहीं, समुद्र का पानी बह जाकर हमारा धर्म चला जाएगा, मुसलमानों का नहीं जाता। हाँ, उनका धर्म तो जरा मजबूत है, वो नहीं जाता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आदेश देता हूं कि प्रत्येक घर से एक लड़के को मुसलमान बनाया जाए। तो राजा के आदेश पे हर घर से एक मुसलमान बनाया गया। फिर कहा अब जाओ। तब उन्होंने कहा साहब हमने तो आपको तो वहां में मुसलमान बनने के लिए गया, हमको लड़की कौन देगा? और उन्होंने दूसरा आदेश निकाला कि अपनी लड़कियां इनको दो और इनको अपना दामाद बनाओ। मलयालम भाषा में दामाद के लिए शब्द है मां पिल्ला। उसी से मोकला पैदा हो गया और आज वो हमारे लिए सिरदर्द बनकर के बैठा हुआ है। यही कश्मीर के अंदर, कश्मीर में महाराजा रणजीत सिंह के समय में महाराजा रणजीत सिंह करके दूसरे हुए, ये नहीं, कर्नल सिंह के प्रधान। उस समय हमारे लोगों ने कहा कि हम तो मुसलमान अपनी इच्छा से बने थे, जो जबरदस्ती से बनाए गए, हम वापिस आना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा। और सबको जो है वहां झेलम नदी के किनारे एकत्रित होने के लिए कहा, सब बड़े आनंद से एकत्रित हुए। और जब राजा वहां पर पहुंचे, ब्राह्मणों को आकर के कहा राजपुरोहित को कि आकर के इनको सबको शुद्ध करो। तो राजपुरोहित 7 ब्राह्मणों के साथ गले तक पानी में खड़ा था और कहा कि राजा ये पाप का कार्य है, इसमें अगर तुम आगे बढ़ोगे तो हम यहाँ डूब करके मर जाएंगे और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। राजा ने सोचा होगा कि ठीक है ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इनको तो बाहर निकाल दो, मैं नरक में रह जाऊंगा। तो क्या कश्मीर की समस्या नहीं देखी, उन्होंने दूरदृष्टि से देखा होगा कि हम ये आज कर रहे हैं, कल को क्या होगा, तो भी नहीं होता। उन्होंने दूसरे देखा नहीं और इसलिए उनके भी वंशज आज उस कश्मीर की धरती से लात मार करके बाहर निकाल दिए। धर्मग्लानि होगी वो इस प्रकार की, और इसलिए तो धर्मग्लानि के उसके कारण विदेशी लोग आते गए, आकर के हमारे पर राज्य करते तो राज्य करते 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 15 अगस्त 1947 को जो है हम अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंचे, जब अपना आसे तो हिमाचल वेद काल से लेकर के आज तक चला जो हमारी भारत माता इसके 2 टुकड़े हो गए। अपनी आंखों के सामने हम लोगों ने देखा, लेकिन उसके पहले ही इस निम्नतम बिंदु के पहुंचने पर पहले ही 19वीं शताब्दी में आध्यात्मिक जागृति प्रारंभ हो चुकी है। और सबसे पहले ऋषि दयानंद सरस्वती ने और समाज के अंदर वेदों के प्रति निष्ठा को जगाया। उन्होंने कहा कि देखो वेद हमारे मूल है, अगर अपनी जड़ से चढ़ जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। और उन्होंने से विद्वान तैयार किया कि जिन्होंने बड़ी सूक्ष्मता के साथ में ईसाइयत का अध्ययन किया, इस्लाम का अध्ययन किया, कुरान का किया, बाइबल का किया, और फिर शास्त्रार्थ के उनके मौलवियों को और बाकी के लोगों को बुलाया, पादरियों को बुलाया, शास्त्रार्थ किया, शास्त्र वाला का लिखने वाले
इस्लाम और ईसाई तो कोई तर्क के ऊपर आता ही नहीं है, और उनको पराजित किया और पराजित करके वैदिक परंपरा की प्रतिष्ठा को फिर से कायम किया, उसको कायम किया। उसके बाद 1836 में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ, तो उन्होंने समाज जितने भी उस समय इस देश के अंदर अपने एकक देशीय जितने भी उपासना पद्धतियां प्रचलित थी और विदेशियों से आई उपासना पद्धति इस्लाम और ईसाई के सबके माध्यम से उन्होंने साधना की, और साधना करके प्रत्येक उपासना पद्धति का जो अंतिम गंतव्य था उसको उन्होंने प्राप्त किया। और कहा अपने देश की जो सनातन परंपरा है कि सत्य एक है, उसको प्राप्त करने का अनेक रास्ते हैं, किसी भी रास्ते से जाओ तो अंततः उस सत्य तक पहुंचोगे। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, इसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। और बाद में उनके इस संदेश को स्वामी विवेकानंद अमेरिका में ले गए। स्वामी विवेकानंद सन्यासी बनने के बाद नरेंद्रनाथ दत्त थे, और उन्होंने सारे पाश्चात्य दर्शन को पूरी तरह से उन्होंने पढ़ा हुआ था और सारी विचारधाराओं को प्राप्त, उन सबको पढ़ करके वो नास्तिक बन गए। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का पावन स्पर्श हुआ और उसके कारण यह आध्यात्मिक ज्योति पैदा हुई इसमें जाकर के, और अमेरिका में जब दिग्विजय किया, केवल एक ही वाक्य, जो धर्म सभा हुई 1893 में, वहां पर 1993 में जो धर्म सभा हुई, उस 1993 की धर्म सभा 1893 की जो धर्म सभा हुई, उस धर्म सभा में केवल पहला संबोधन शिष्टाचार अमेरिका, इससे लोग इतने अभिभूत हो गए जैसे मानो किसी ने बिजली का करंट चला दिया हो। 6,000 लोग जो सारे अमेरिका से वहां एकत्रित हुए इस कार्यक्रम में, वो अपने स्थान पर उछल पड़े, 5 मिनट तक लगातार तालियां 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 बताते रहे। और दूसरे दिन समाचार पत्रों के अंदर यह प्रकाशित होने लगा कि हम अपने बागियों के ऐसे देशों में क्यों भेजते हैं, वास्तव में तो उस देश के ऐसे विद्वान हमारे यहाँ पर आना चाहिए। एक बाहर का व्यक्ति आकर के हमको भाई कहता है, उसको बहन कहता है, क्योंकि बाकी सारे संबोधन करते थे वो लेडीज एंड जेंटलमैन करते थे। इन्होंने कहा सिस्टर संकट को समझ लिया, ये तो वही कह सकता है कि संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है, वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखता है, इसलिए अभिभूत हो गए सब। लेकिन हिंदुस्तान ने जब ये सुना कि हमारे यहाँ का एक व्यक्ति वहां पर जाकर उसने ऐसा पराक्रम किया, तो यह जो और सारा सुप्त राष्ट्र था उसके अंदर एक सिहरन हुई, जैसे किसी ने विद्युत करंट बीच में डाल दिया, बिजली का करंट डाल दिया, एक विद्युत धारा बताया। और उसके बाद से हम देखते हैं कि अपने देश के अंदर अनेक इस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक इस प्रकार के उत्थान बदलाव है। इसी कड़ी में स्वामी रामतीर्थ, भगिनी निवेदिता, ऋष्यवीर, श्री मां रमण महर्षि ये हुए, और अनेक आध्यात्मिक कालों में शुरू हुए। बंगाल में ब्राह्मण समाज, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, दक्षिण में श्रीमती एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण किया, केरल में नारायण गुरु के कार्यक्रम आंदोलन वहां पर कार्यक्रम हुए, और इस सब के कारण राष्ट्रीय मानस को झकझोर करके उन्होंने खड़ा कर दिया, और भारत के अभ्युत्थान और सुनहरे भविष्य का चित्र उन्होंने उस समय पर दिया, संकेत दिया। उनकी आकांक्षाओं को आकार देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहिए था जिस सारे दायित्वों को लेता कि हाँ, आप सब लोगों ने जो सुनहरे भविष्य की आकांक्षाएं संजोई है उसको साकार करने के लिए ये दायित्व मैं लेता हूं। और यह गुरुतर दायित्व अपने कंधों पर लेने वाले थे परम पूजनीय श्री गुरु जी। अपने माता पिता के 9 संतानों में से अकेले माधवराव जी बचे थे। बहुत ही मेधावी थे, बड़ी तीव्र स्मरण शक्ति के धनी थे। एक बार पढ़ लेने के पश्चात जो कुछ सामग्री पढ़ते थे वो अमिट रूप से उनके मनो मस्तिष्क पर अंकित हो जाते थे। आगे चलकर तो
केवल एक बार पलटकर अगर देख लेते थे तो उसमें वो समझ जाते थे क्या लिखा हुआ है। मैं एक बार उनसे चर्चा कर रहा था कि पढ़ने की गति बढ़ाना चाहिए इस नाम की पुस्तक थी। तो मैंने पुस्तक पढ़ी और उसमें उसने लिखा है कि एक व्यक्ति 1500 पृष्ठ जो है केवल 5 घंटे तक पढ़ लेता था। कैसे होता था? तो गुरुजी ने समझाया कि भाई ऐसा है कि जब कोई छोटा बच्चे को हम पढ़ाना सिखाते हैं तो पहले क ख ग घ सिखाते हैं, फिर बाद में और 2-2 अक्षर मिला करके पढ़ना सिखाते हैं कि ज और ग जग, ता और का तक, फिर बाद में 3-3 अक्षर का और म और ल, कमल, मदन, ऐसे 3-3 अक्षर मिलाते हैं, फिर 4-4 अक्षर मिलाते हैं, फिर उसको मात्राएं सिखाते हैं और इस प्रकार से मात्राएं सिखा करके अब पूरा का पूरा शब्द पढ़ने लगते हैं। अब उसके बाद हम सब जब शब्द पढ़ते हैं एक एक शब्द पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसमें हमने अपनी गति को बढ़ाया तो हम 4-4, 5-5 शब्द भी एक साथ देख सकते हैं और फिर इस क्षमता को हमने आगे बढ़ाया तो पूरा का पूरा वाक्य देखकर बीच में ध्यान केंद्रित करके पूरे वाक्य को देख करके सारे वाक्य में क्या लिखा है ये हम समझ सकते हैं। बाद में पूरा अनुच्छेद, पूरा पैराग्राफ ये पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ में क्या लिखा है हम केवल देख करके समझ सकते हैं और फिर सारे प्रश्न को भी समझ सकते हैं। और ये स्वयं जो क्षमता थी गुरुजी ने अर्जित की तो पंडित दीनदयाल जी से एक बात सुनने को मिला। तो दीनदयाल जी ने कहा कि पुस्तक तैयार हुई थी राष्ट्रधर्म प्रकाशन से। वो पुस्तक परंतु ने गुरुजी के हाथ में ली। गुरु ने उसका करने इसी प्रकार से पढ़े खड़े खड़े पढ़ने पढ़े और पढ़ने पलट करके कहा इसमें 3 अशुद्धियां हैं। तो दीनदयाल जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अशुद्धियां? अरे हमने तो इतनी बारीकी से प्रत्येक चीज देख करके क्यों अशुद्धि नहीं देके देखा तो 3 अशुद्धियां कैसे निकल गई? ठीक है भाई छूट गई होगी लेकिन हो सकता है कि और भी कुछ इस प्रकार की अशुद्धियां हो कि जो छूट गई हो। मुझे तो 3 बताया हो सकता है। इसलिए फिर से उन्होंने एक शब्द ठीक ढंग से पढ़ा और कहा कि पूरी पुस्तक में उन 3 को छोड़ करके और कोई दूसरा अशुद्धि ही नहीं। परंतु गुरु जी अपनी माता के 9 संतानों में से आगे लिए एकमात्र बचे और इसलिए माता उनके ऊपर कितना प्रेम होगा अच्छी तरह से जान सकते। तो उन्होंने वही पर इंटरमीडिएट पढ़ा। अत्यंत मेधावी और स्मरण शक्ति के धनी तो थे और इसलिए इंटर के पश्चात जब वो 1924 से लेकर 28 तक उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी और एमएससी किया तो वहां पर हजारों पुस्तकें पुस्तकालय में थी। बाकी का समय में तो पुस्तकालय में बैठ जाते और फटाफट सारी पुस्तकें देखते रहते। तो सारा संस्कृत का महाकाव्य है, अंग्रेजी का साहित्य है, पाश्चात्य दर्शन है, रामकृष्ण विवेकानंद का साहित्य है, विभिन्न उपासना पंथों के जो अनेक ग्रंथ हैं उनको भी उन्होंने पढ़ा और इन सारे सैद्धांतिक विचारों को पढ़ने के कारण उनके मन के अंदर एक तीव्र मानसिक बंध उत्पन्न हो गया। उस बात का विचार करने लगे इतने सारे ग्रंथ पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सब अपना अपना रास्ता बता रहे हैं, वास्तविक मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? उसके तुरंत पश्चात मत्स्य जीवन के ऊपर विशेष शोध करने के लिए वो चेन्नई गए। 2 साल तक ही चेन्नई में रह पाए, पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पिता की नौकरी समाप्त होकर उनको पेंशन मिलने लगी और उस पेंशन के अंदर इनका वहां का खर्च उठा नहीं सकते थे, इसलिए उनको वापिस आना पड़ा। लेकिन ये 2 वर्ष का कालखंड जो परम पूज्य गुरु जी का था ये अत्यंत प्रकार के मानसिक द्वंद्वों से भरा हुआ था। और इन सारा मानसिक द्वंद्वों का जो पता चलता है वो अपने मित्र बाबूराव तेलंग को जो पत्र लिखा करते थे वो पत्र 14, 15 पृष्ठों के हुआ करते थे और एक दिन में नहीं लिखे जाते, कई तारीखों में लिखे जाते। एक समय
लिखा क्या तो दूसरी लीजिए, ऐसी कई तारीखों में लिखे जाते। तो उसमें उनका ये मानसिक द्वंद्व जो है वो बड़ा स्पष्ट होता है। तो जनवरी 1929 को जब लाहौर में अत्याचारी सैंडर्स की गोली मारकर के हत्या कर दी गई, तो उस समय उन्होंने उनको लिखा, लाहौर का विस्फोट सुना, अतीव धन्यता हो गई, आंशिक रूप से क्यों न हो, उन्मत्त विदेशी शासकों द्वारा किए गए अपमान का परिमार्जन हुआ, संतोष की बात है। मारकाट, उपद्रव, विद्वेष, बदला लेने की दुर्भावना आदि का निषेध कर मैंने आपके साथ विश्व बंधुत्व, समता आदि विषयों पर भी चर्चा की है, आपको दोषी ठहराया है, आपसे झगड़ा भी किया है। वही मैं आपको इस प्रकार का पत्र लिख रहा हूं, देखकर आपको आश्चर्य होता होगा। एक ओर बदला लेने की कामना और तरुणाई का जोश, और दूसरी ओर वेदांत का शांत अचल सूत्र, इन दोनों के बीच उस समय इतना भीषण संघर्ष चल रहा था कि मैं विचलित हो उठा, मन अशांत हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, मुझे बुखार रहने लगा, खांसी रहने लगी, कई दिनों तक बुखार खांसी चली। अंत में इंजेक्शन इत्यादि के द्वारा मैं बीमारी से मुक्त हुआ। जब बीमार से मुक्त हुआ तब फिर मन की बेचैनी भी शांत हो चुकी थी। उसी पत्र में आगे लिखते हैं, लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगानी होगी, हिंदू और मुसलमान के बीच वास्तविक संबंधों का ज्ञान कराना होगा, ब्राह्मण अब्राह्मण के बीच विवाद को खत्म करना होगा, क्योंकि उन्हीं दिनों में रामस्वामी नायकर ने अंग्रेजों की प्रेरणा से द्राविड़ कलम की स्थापना की और ब्राह्मण विरोध का एक बहुत जबरदस्त उस समय पर आंदोलन उन्होंने चलाया हुआ था। तो उनको आगे इसलिए कहते हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच के विवाद को खत्म करना होगा। मैं कोई बड़ा नेता या कार्यकर्ता नहीं हूं, किंतु हर एक को इस काम में सहयोग देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि संघ से संपर्क आने के पहले ही यह चीज करनी चाहिए जब भाव उनके मन के अंदर आ गया था। लेकिन एक दूसरी अस्थिरता भी मन के अंदर थी। एक और उनका मन जो है वो सारे बंधन तोड़ करके हिमालय जाने की इच्छा प्रकट करता था, और दूसरी ओर और उनका मन उनको धिक्कारता था। अकेले अपने सुख के लिए बाकी समस्त देशवासियों को दुख और कष्ट में जाकर के तुम चले जा रहे हैं। 28 फरवरी 1929 को अपने पत्र में वो लिखते हैं, अब मैं हिमालय नहीं जाऊंगा, हिमालय स्वयं मेरे पास में आएगा, उसकी शांत नीरवता मेरे भीतर ही रहेगी, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। 1930 और 33 के बीच में उनको प्राणी शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। वहां जिस समय पर 3 वर्ष थे, उस 3 वर्ष में वो छात्रों के लिए अत्यंत लोकप्रिय हो गए, क्योंकि उनका विषय तो प्राणी शास्त्र था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, दर्शन पढ़ाते थे, मनोविज्ञान पढ़ाते थे। जिस विषय पर भी कोई छात्र उनके पास में आता था, उनको अत्यंत प्रेम से पढ़ाते। ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कई बार उनको और पुस्तकें खरीदनी पड़ती थी, वो पुस्तकें खरीदते थे, उसको पढ़ते थे, इसको झंझट नहीं समझते थे, उनको इसमें असीम आनंद होता था विद्यार्थियों को पढ़ाना। एक सच्चे गुरु की जो कामना रहती है, उस कामना क्या नाम है, वो पढ़ाते थे। कोई अगर गरीब विद्यार्थी परीक्षा की फीस नहीं भर पा रहा तो उसको परीक्षा का शुल्क भी भर दिया करते थे। कोई पुस्तक नहीं खरीद पा रहा, उसको पुस्तक खरीद करके दे देते। तो उनके वेतन का अधिकांश हिस्सा वो इसी प्रकार के और विद्यार्थियों के हित के कार्यों में खर्च करता था। यह जो उनकी छात्र वत्सलता थी, यह जो उनका मिलनसार स्वभाव था, सदा तत्पर वृत्ति थी, इसके कारण वो विद्यार्थी बड़े लोकप्रिय हो गए। और वहीं से ये गुरुजी नाम का चला, जो सही अर्थों में सार्थक हुआ, जब संपूर्ण और उन्होंने कहा कि इस प्रकार माधव भगवान प्रमाण अपने मातृ हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं, और हम सब लोगों को पालक चालक के रूप में हम लोग उनको देखते हैं, शाखा में भी आकर हम लोगों को सब प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं पूछे गुरु जी डॉक्टर साहब ने 1932 में उनको डॉक्टर सदगोपाल, इन दोनों को बुलाया नागपुर का विजय विश्व उत्सव दिखाने।
उस समय विद्यादशमी आत्मा का बहुत बड़ा होता था, उसकी बड़ी तैयारी होती थी और डॉक्टर साहब समाज जीवन के विभिन्न लोगों को वहां पर बुलाया करते थे विजयादशमी के उत्सव में, और वो सारे कार्य को लेकर के अनेक लोग प्रभावित हुआ करते थे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब गोपाल गुरु जी को बुलाया और आप देखेंगे कि जब गुरु जी और डॉक्टर साहब गोपाल दोनों ट्रेन पर पहुंचे तो स्वयं परम डॉक्टर साहब वहां पर उपस्थित थे माला लेकर के, और उन्होंने डॉक्टर साहब गोपाल और गुरु जी का माल्यार्पण से स्वागत किया। उत्सव हुआ, उत्सव के बाद डॉक्टर साहब गोपाल तो चले गए, लेकिन गुरु जी कुछ दिनों तक अपने घर पर रहे। तब उनको और अलग अलग आसपास की जो शाखाएं थी वो शाखाएं उन्होंने दिखाई, और जब व्यक्तिगत मिलने बातचीत का अवसर आता था उस समय संघ कार्य के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी बातें हैं, और उनको वो अच्छी तरह से समझाते थे। अब उसके बाद उनका जो गुरु जी का संबंध आया उस समय तो आया, फिर 33 लोग वापिस आ गए, और 33वां वापिस आने के पश्चात यह जो 1932 से लेकर के और 1937 तक का ये जो 5 साल का कालखंड था, ये दो महान विभूतियों के बीच में परस्पर अनुकूल और कभी-कभी प्रतिकूल दिशा में खींचने वाली इच्छा शक्तियों के उच्चार उतार का एक विलक्षण खेल चल रहा था। डॉक्टर साहब उनको एक दिशा में खींचना चाहते थे, कभी-कभी गुरु जी उससे प्रभावित उनके दिशा में आते थे, और कभी-कभी और उनकी जो आध्यात्मिक रुझान है उनको दूसरी तरफ खींच करके ले जानी थी। और इसीलिए डॉक्टर साहब चाहते थे, डॉक्टर साहब को ये तो अनुभव आ गया था कि गुरु जी अत्यंत ही मेधावी है, अत्यंत स्पष्ट वक्ता है, अत्यधिक गुणवत्ता गहरा अध्ययन है, किसी बात को बड़े तर्कशुद्ध पद्धति से प्रस्तुत करते हैं। ये बात उनके ध्यान में आ गई थी, और इसमें उनको लग रहा था कि आगे के संघ कार्य के लिए ले जाने तो कितना अच्छा होगा। इसलिए उनका हर प्रकार का प्रयास रहता था कि उनको और संघ कार्य की तरफ आकर्षित करें। और इसलिए 1933 में जब फिर से वो नागपुर में आ गए तो उनको उन्होंने छोटे मोटे दायित्व देना शुरू कर दिया। दूसरी बार शाखा उनको कार्यवाह बना दिया, फिर बंबई में संघ कार्य का विस्तार करने के लिए भेजा। 1935 में अकोला में एक संघ शिक्षा वर्ग हुआ, उसका उनको सर्वाधिकारी बनाया, और जब सब जब वहां पर गए तो उस संघ शिक्षा वर्ग का वातावरण इतना अच्छा था कि उसको देख करके डॉक्टर साहब बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको फिर और जोर से लगेगा गुरु को मिलना चाहिए, इसमें उनके प्रयत्न और चल रहे थे। लेकिन इधर गुरु जी का जो अध्यात्म की तरफ रुझान था उसके कारण वो वहां के रामकृष्ण आश्रम में भी जाने लगे, और वहां पर स्वामी भास्करेश्वर आनंद जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे उनके साथ उनके संबंध आने लगे। उनके प्रवचन सुनने के लिए जाना, वहां के उत्सव में उपस्थित होना उसे समय पर। और एक अमिताभ बजाज जो स्वामी अखंडानंद जी के शिष्य थे। स्वामी अखंडानंद जी उस समय पर रामकृष्ण मठ मिशन के अध्यक्ष थे, उनके शिष्य थे। तो उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण डॉक्टर उनको सलाह दी कि किसी सूखी जलवायु के स्थान पर जाना चाहिए, इसलिए नागपुर आए और नागपुर के रामकृष्ण मिशन में रहे। तो उनकी उम्र गुरु जी की उम्र प्राय समान होने के कारण दोनों में दृष्टता हो गई, और वहां पर इनका आना जाना काफी चलन हो गया। तो वो सारे प्रवचन इत्यादि सारा सब सुनने के पश्चात उनके मन के अंदर फिर से अध्यात्म जोर मारने लगा। अब इसमें जिनको वनिता महाराज कहते हैं, ये वास्तव में इनका पूरा पूर्व आश्रम का नाम था हरिदास मुखर्जी, और ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारियों की संस्था जिसमें परमपूज्य डॉक्टर साहब भी थे, उसी के अंदर हरिदास मुखर्जी भी थे। और ये क्रांतिकारी संस्थाओं के अंदर जुड़े हुए होने के कारण अंग्रेज के जो गुप्तचर विभाग के लोग हमेशा इनके पीछे पड़े रहते थे, और जब इनका अधिक पीछा होने लगता था तो सीधे वो जाकर के सारगाछी पहुंच जाते थे स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में, और वहां जाकर के सफेद कपड़े अपने पहन करके आराम के साथ ही ब्रह्मचारी करने लगते थे। स्वामी अखंडानंद जी उनको वहां पर शरण दिया करते थे। तो पहली बार जब हरिदास मुखर्जी वहां पर गए और वहां जाकर के अखंडानंद जी के पास में बैठे, तो उन्होंने
पूछा बाबा, अखंडानंद जी लोग बाबा कहते, बाबा आप इस अमंगल स्थान पर क्यों बैठे हुए हैं जहां पर भारत का भाग्य सूर्य अस्त हुआ? क्योंकि ये जो सारगाछी है ये प्लासी के पास में है। प्लासी का स्टेशन मिलता है, सारगाछी का स्टेशन मिलता है, और वहीं पर नवाब सिराजुद्दौला से जो उसने बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों की लड़ाई हुई थी, और उसमें नवाब का जो एक सेनापति था मीर जाफर, वो और राजद्रोह करके जाकर अंग्रेजों से मिल गया, और इसके कारण नवाब सिराजुद्दौला हार गए और अंग्रेजों का राज्य ये वहां से प्रारंभ हुआ, बंगाल से आगे चलकर वो दिल्ली तक पहुंच गया, देश में अंग्रेजों का राज्य होगा। इसलिए उन्होंने पूछा कि आप इस अमंगल स्थान पर क्यों बैठे हुए हैं जहां पर भारत का भाग्य सूर्य अस्त हुआ? तो बाबा ने उत्तर दिया कि जिस स्थान पर भारत का भाग्य सूर्य अस्त हुआ है उसी स्थान पर भारत का भाग्योदय करने वाला भी कोई आएगा। तो हरिदास शंकर जी ने कहा कि उसके लिए तो बहुत समय लग सकता है, आप तक तो प्रतीक्षा करेंगे। बोले हाँ, हमारे शिष्यों में से भी कोई ना कोई आ जाएगा। और उसी स्थान पर जो है आगे चलकर के गुरु जी पहुंच गए। तो कि गुरु जी ने और यहाँ स्वामी अमृतानंद जी से पूछा कि क्या आप हमको ऐसे व्यक्ति के दर्शन करा सकते हैं जो जीवन मुक्त हो, अर्थात जीवित तो है लेकिन इस संपूर्ण शरीर से मुक्त है? तो मैं कहा कि हाँ करा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, घर द्वार परिवार माता पिता नाम यश सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। तैयारी है? बिना एक क्षण का विलंब किए हुए उन्होंने कहा यहां है। तो मैं कहा ठीक है, तुमको बताऊंगा। अब परमपुरी गुरु जी के समग्र जीवन का हम अगर अध्ययन करें तो दिखाई देता है कि परमपुरी गुरु जी का जीवन मातृत्व के 3 आयामों को लेकर के चला है। जन्मदात्री मां, मातृभूमि और हम सबका आदि स्रोत जगत जननी। प्रारंभिक अवस्था में इन तीनों ही माताओं के प्रति उनकी खींचतान बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। एक अवस्था में तो जगत जननी की खोज में अपनी माता और मातृभूमि के प्रति दुर्लक्ष्य किया। 4 अक्टूबर 1969 में पुणे में मातृपूजन नाम के एक पुस्तक का विमोचन हुआ। उस पुस्तक का विमोचन करते समय उन्होंने इस बात का चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से बिना अपनी माता को बताए वो साकार के आश्रम चले गए, पर जैसे उनका चिंतन गहरा हुआ, आत्मदर्शन परिपूर्ण हुआ, 2 महापुरुषों रामकृष्ण मठ के पार्षद के अध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के स्नेहाशीष से इन तीनों ही माताओं के बीच एक सामंजस्य पूर्ण एकता स्थापित करने में वो सफल हो गए। जन्मदात्री मां और जगत जननी मां की ओर उनका आकर्षण मातृभूमि की सेवा के रूप में संतुलित हो गया। तो मातृभूमि की सेवा करते समय जगत जननी की भी सेवा हो रही, क्योंकि उन्होंने अपने भारत माता को जगत जननी के रूप में देखा और अपनी माता की भी सेवा उस माध्यम से हो गई। तो इस प्रकार से इन तीनों ही माताओं का संग्रह मातृभूमि के रूप में प्रभुभूमि को जी में हो गया। तो गुरु जी जब अखंडानंद जी के पास में पहुंचे तो अत्यंत भक्ति भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो कुछ दिनों तक ईश्वर का सेवा करते हैं, जो भी काम उनको बताया जाता है वो काम वो करते। बाकी की सेवा पढ़े तो पहले तो और कहीं बर्तन मांजना, सब झाड़ू लगाना, सफाई करना, हम कहते हैं कि यही काम करो, यही काम आवश्यक है, बाकी सब घर बनाना वाले बताएंगे। बाबा ने कहा तो करते थे। एक दिन कोई उत्सव था, उस उत्सव में भोज हुआ जिसमें आसपास के रहने वाले जितने जनजाति बंधु थे सबको भी निमंत्रण दिया गया था। वो सब लोग आए थे, भोज इत्यादि हो गया। सारे बर्तन जो थे वो रात्रि को ऐसे टूटे पड़े हुए थे। पूछे गुरु जी रात्रि को इन सारे लोगों को जमुना किनारे ले गए और वहां के रेत के अंदर को मांझ मूंझ करके उसको साफ सुथरा करके रख दिया। प्रातः तक जब आश्रमवासी उठे तो देखते क्या है
वो सारे के सारे बर्तन जो है बिल्कुल सोने जैसे चमचमा रहे हैं। तुरंत जाकर करके आश्रम वाली ने बाबा से कहा, बाबा आपने जो एमएससी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी आया है, इसने बर्तन ऐसे और मांझ करके खड़े पीतल के बर्तन ऐसे मांझे कि सोने जैसे चमक रहे हैं। बाबा ने कहा कि ध्यान रखना, वो जिस किसी काम में हाथ डालेगा उसको ही सोना बना करके छोड़ेगा। अब गुरु जी जब सेवा करते थे तो रात्रि को 12 बजे तक अपने गुरु के पैरों में, जब गुरु को नींद लग जाती थी तो उस समय बड़े समय जब वो 4 बजे उठते थे तो उस समय इसके पहले की वो अपना पैर नीचे रखते हैं, खानों लेकर के उपस्थित रहते। कब सोते थे, क्या सोते थे बताए? पूछने पर उन्होंने एक बार बताया, अरे भाई गुरुदेव ने कहा था कि कम से कम सोना चाहिए। तो कब सोते थे, कब पढ़ते थे, पता नहीं। तो इस प्रकार से बड़े भक्तिभाव सो रहे। बाद में बाबा अखंडानंद जी का जो है शरीर थोड़ा सा अस्थिर रहने लगा, बीमार रहने लगा, तो उन्होंने अमिताभ महाराज को बुलाया। अमिताभ महाराज आए, आपके साथ सबसे बड़ी बुद्धि से भेंट हो गई। तो उन्हें पहला प्रश्न किया, दीक्षा हो गई? उन्होंने कहा नहीं। बाद में बाबा से मिले और बाबा से मिलकर के उन्होंने कहा कि गोविंद कर, बाबा को गोविंद कर कहते थे, गोल वल कर गोविंद। तो बाबा कहने लगे कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं। तो उन्होंने उनसे कहा कि गोविंद के माता पिता काफी वृद्ध हो चुके हैं, अतः उन्हें शीघ्र मंत्री दीक्षा देकर अगर वापस भेजा जाएगा तो व्यापार व्यवसाय कर सकेंगे और माता पिता की सेवा कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा दीक्षा तो मैं उसे दे दूंगा, पर यह कौन कह सकता है कि वो वकालत का व्यवसाय ही करेगा। 23 जनवरी 1937 को बाबा ने उनको दीक्षा दी। उसने गुरु जी ने अपनी डायरी में लिखा है, स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य मेरे जीवन का वह संस्मरणीय दिन था, क्योंकि असंख्य जन्मों के पश्चात प्राप्त होने वाला सौभाग्य मुझ पर प्रसन्न हुआ था। सद्गुरु की असीम कृपा उस दिन मुझ पर हुई थी। मेरा सारा शरीर रोमांचित हो रहा था। 1 मिनट पूर्व में जो था वह मैंने कहा। ये 13 जनवरी को हुआ और 24 जनवरी 1937 को उन्होंने फिर सबको बुलाया और बुला के कहा तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण हो, तुझे आत्मदर्शन हो, यही विदेशी गुरु महाराज से प्रार्थना है। मुझ में जो अच्छाई है वह मैं तुझे दे रहा हूं, तुझ में जो बुराई है वह तू मुझे दे दे। मुझे सुख की चाह नहीं है, मुझे दुख चाहिए, मुझे तेरा कभी विस्मरण न हो, यही भगवान से प्रार्थना है। मेरा तुझे आशीर्वाद है, आज की संध्या का सदैव स्मरण करते हो। बाद में उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा तो आश्रम के संतों ने मिलकर के तय किया कि उनको कलकत्ता नहीं चलना चाहिए चिकित्सा के। और चूंकि अमिताभ महाराज उनके सबसे बड़े स्पष्ट शिष्य थे तो उन्होंने जाकर कहा कि बाबा सब लोगों की इच्छा यही कि आपको कलकत्ते ले चलो। तो उनका अविश्वसनीय रखानी क्या है, अरे ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, कहीं के लिए जाओ, नहीं सबकी इच्छा, ठीक है ऐसा करना हो। फिर आश्रम को किसको करना, क्या करना, सब पूछा। उन्होंने कहा कि ध्यान रखना गोविंद कर को रामकृष्ण आश्रम में मत रखना। ये तो डॉक्टर हेडगेवार के पास में जाकर के काम करेगा, शुद्ध भाव से समाज की वह सेवा करेगा। उन्होंने कहा उसको कई बार हिमालय दर्शन की इच्छा होती है। उन्होंने कहा कि हिमालय दर्शन अवश्य करे, किंतु एकांतवास में करे, इस बात का तुम सदा ध्यान रखें। वहां से फिर जिस समय कलकत्ते आए तो रेल में गुरुजी की गोद में ही बाबा का सिर था और वहां से वो कलकत्ते तक आए। अस्पताल में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने आकर के सब प्रकार का देखा, लेकिन फिर वो रहे नहीं, उसी में उनका निधन हो गया। और दूसरे दिन और फिर गंगा के किनारे उनके और अंत्यक्रिया
अंत्यक्रिया होकर के रात्रि के समय में जब उनके विवेकानंद गुरु भाई और अन्य आश्रम के सन्यासी और ब्रह्मचारी के सब आपस में बैठ करके और बाबा खंडानंद की महानता वर्णन कर रहे थे, उस समय पर अमेरिका महाराज खोज रहे थे गुरु जी कहाँ है? गुरु जी नहीं दिख नहीं रहे, तो तुरंत उनको लगा एकदम वो किनारे वहां गंगा के किनारे गए तो वहां चिता चल रही थी, चिता के किनारे गुरु जी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा यहाँ क्यों बैठे हो, चलो वहां सब लोग एकत्रित हैं, बातचीत कर रहे हैं, मैं आप क्या रखा तो सब खेल समाप्त हो गया। नहीं नहीं तुमको चलना है तो जल्दी, उनको जबरदस्ती वहां से उठाया। उस समय उन्होंने अपने 2-3 अस्थियां जो है साथ में ले ली थी, जो जीवन भर उनके साथ में रही, और आखिरी समय में उन्होंने उन्हीं अस्थियों का और जो दायित्व है वो अपने भतीजे को दे दिया जो पुणे में रहते थे, जो आज भी उनके पास में सुरक्षित है। फिर आए 13 दिन तक बाकी के सारे कार्य होगा, फिर सारे कार्य हुए। 13वें दिन सब लोग शुद्धि स्नान करके जब वहां से लौट रहे थे तो नागपुर के और एक व्यक्ति थे, रघुवीर ढोंगड़ी करके, जो आगे स्वामी निरामयानंद बने। उन्होंने कहा ना ये बेलूर मठ बहुत अच्छा है, मैं तो यही रहूंगा। गुरु जी को मुझसे मिला कि हाँ मैं यही रहूंगा। तो अमिताभ बच्चन कहा कि तुमको यहाँ नहीं रहना है। बोले हाँ, बाबा ने कहा था कि मैं आपसे परामर्श करूं, आप मुझे क्या आज्ञा देते हैं? बोले जिन डॉक्टर हेडगेवार के पास में तुमको लाया, उन्हीं डॉक्टर हेडगेवार के पास में फिर से तुमको पहुंचाया। और इस प्रकार 1937 में गुरु जी फिर से और डॉक्टर साहब के पास में पहुंचे और 2 धाराओं का मिलन हो गया। इस राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए जितने भी प्रयत्न हो रहे थे तो उसके अंदर भी 2 धाराएं थी, क्रांति धारा थी और एक राजनीतिक आंदोलन की धारा थी। इन दोनों ही आंदोलनों में डॉक्टर साहब ने भाग लिया था, दोनों का अनुभव उनको था और इसलिए उस राजनीतिक धारा से आए हुए। और इस देश का जो मूल तत्व है अध्यात्म, वो अध्यात्म गुरु जी के जीवन के माध्यम से प्रकट हुआ था। तो वो आध्यात्मिक धारा से और स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद सारी परंपरा से उठाए हुए थे। इन दोनों का मिलन यहाँ पर हुआ हरिद्वार में, और उसके बाद संघ की यह जो धारा थी वो निकली। यह जनगंगा पूर्ण चली है बाधाओं की कारा, एक जन्म का पूर्ण पशुबल ने यहाँ सिर में मारा। भूपल नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है, इसे बांध रखने का पाप यत्न हुआ निष्फल है। तोड़ हिमालय चीर जटाएं चली सिंधु की ओर, नगर ग्रामपुर डगर बाकी इसका और न छोड़। अरे किसने ऐसा युद्ध किया जो रोके गति तूफानी, यह जीवन का द्वार चली प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं पर यौवन कभी न हारा, एक देश की बात नहीं है जिस संघर्ष हमारा। पृथ्वीराज की आंखें जाती स्वप्न में जाते, भर जाते हैं घाव पर तार सदा रह जाते। यह जनगंगा जन्मन का कदम से कदम बहाती, जो डूबा सो पार हो गया मुक्ति प्राप्त हो जाती। इसके सम्मुख सम्राटों के हस्तगत होने को, इसके सम्मुख राज गिरने को और बनने को पुण्य पौरुषों के पौरुष का यह प्रतिफल है। सृष्टि का स्नेह प्रलय का आकुल जल है, कोटि बिंदु बढ़ रही सिंधु का घर, कोटि चरण बढ़ रही ढेर की ओर निरंतर। इस प्रकार की जो संघ धारा इन दोनों ही धाराओं से मिलकर के चली, वही संघ धारा। और चलते चलते 1937 में फिर दोनों धाराओं का मिलन होता है और मिलन होकर के डॉक्टर साहब अत्यंत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि प्रसन्न होने के पश्चात गुरु जी को वो अलग अलग प्रकार के दायित्व देते हैं। उनको संघ शिक्षा के सर्वाधिकारी के रूप में देते हैं, उनको कलकत्ते भी भेजते हैं, वहां पर भी संघ कार्यक्रम प्रारंभ कराने के लिए और उनसे प्रार्थना करते हैं। उनको कुछ दिनों तक सरकारी माहौल में बनाते हैं। लेकिन गुरु जी जो थे तब तक उन्होंने अपने आप को अपने डॉक्टर साहब के प्रति समर्पित नहीं किया। वो डॉक्टर साहब को भिन्न प्रकार से काम करने वाला नेता मात्र मान करके चले। लेकिन डॉक्टर साहब का असली रूप का पता उनको लगा जब 1939 में भगवान नाम का एक चित्रपट निकाला बाजी बिहार ने बनाया था। उस भगवान चित्रपट के
और लोकार्पण के अवसर के ऊपर और गुरु जी को कोल्हापुर बुलाया गया था और डॉक्टर साहब को कोल्हापुर गया था, गुरु जी उनके साथ में गए थे। तो जब कोल्हापुर से लौट रहे थे तो डॉक्टर साहब को बहुत ज्वर का बुखार आया और इसलिए देवलाली में नासिक के पास और उनको वहां पर भर्ती किया गया और वहां उनकी चिकित्सा होने लगी। उस समय पर उनका तापमान 106-160 डिग्री तक बढ़ जाता था। अब 106-160 डिग्री जब होगा तो संधिपात हो जाता है और संधिपात में आदमी तो सब प्रकार की चीजें बढ़वाना शुरू कर देता है। वो जो संधिपात में जैसे वो बढ़वाते थे तो उनके मुंह से क्या निकलता था? ये निकलता था, अरे देरी हो गई, आपने को समय पर पहुंचना है, जल्दी चलो, या संघ का कार्य शुरू होने में देर हो गई। संघ कार्य 10 साल पहले शुरू होता तो कितना अच्छा होता। 1915 में संघ शुरू हो जाता है और आज अपने देश में संघ की शक्ति इतनी होती कि अंग्रेज लोग इस समय जो जितनी महायुद्ध के अंदर है फंसे हुए हैं, उस समय पर हम इस शक्ति का उपयोग करके देश को स्वतंत्र कर सकते थे। क्या करें, समय चुक रहा है। तब गुरु जी को ऐसा लगा कि ये तो पूरी तरह से मातृभूमि के साथ एक रूप हो चुके हैं। उन्होंने बाबा अखंडानंद जी की इसी प्रकार की सेवा की और अखंडानंद जी का वो रूप भी देखा था जो जीवन मुक्त का रूप होता है। उनको दीक्षा देने के और 24 जनवरी के पश्चात फिर बाद में एक दिन और अमिताभ महाराज उनको गुरु को बुला कर देखो इनका शरीर देखो, उनके शरीर को जरा चूटी लो, चूटी उनको कुछ नहीं। हमने कहा ये जीवन मुक्त अवस्था में मैंने तुमको वादा किया था कि मैं दिखाऊंगा, देखो मैं दिखाऊंगा, मैंने अपना वादा पूर्ण कर दिया है। ये जीवन मुक्त अवस्था है, इससे उनको शरीर का भान नहीं है। और उससे उन्होंने देखा कि बाबा इस प्रकार का और जगन्माता का वर्णन कर रहे थे जैसे जगन्माता सामने खड़ी हो तो नखशिकांत उसका वर्णन कर रहे थे, उनके मुंह से भरा श्लोक निकलते चले जाए। मां सामने खड़ी है उसका वर्णन कर तो उन्होंने देखा। यहां पर उन्होंने देखा कि परंतु ये रक्षा मातृभूमि के प्रति इतने पूर्ण रूप से एकरूप हो चुके हैं और आगे चल करके वो कहते हैं कि मातृभूमि की दुर्दशा को देख करके और उस महापुरुष के मन के अंदर जो तीव्र वेदना हो रही थी, उस वेदना का अनुभव करने के पश्चात मैंने अपने आप को पूरी तरह से उनके अंदर समर्पित कर दिया और इस समर्पण में ही मुझे आनंद है। तो सभी रूप से किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते थे। डॉक्टर साहब का जब इस प्रकार का मातृभूमि के साथ एकरूप हुआ, उन्होंने सारा जीवन देखा और इसलिए वो कहते हैं कि बाबा अखंडानंद जी और डॉक्टर डीकेवार की कृपा से और मैं ये तीनों ही माताओं को भारत माता के रूप में सम्मिलित रूप से देखने में सफल है। तो इस प्रकार से और इस प्रकार डॉक्टर साहब फिर उनको दायित्व देने लगे और बाद में एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की बैठक हुई और वो बैठक सन 1939 में हुई सिंधी नाम के स्थान पर, जो नागपुर और वर्धा के बीच में। नाना साहब उस समय अपने संघ से बड़े अच्छे संबंधित थे, संघचालक थे, उनका निवास स्थान का वहीं पर बैठक हुई और उस समय जो संघ के अंदर प्रमुख 15-20-25 लोग थे उनकी वो सही बैठक थी जिसमें गुरु जी थे, आपा जी थे, डॉक्टर साहब थे, फिर ये अपने नाना साहब तालाडोले थे, गुणाकर पिंगली थे। ऐसे उस समय जितने भी 15-25 प्रकार के प्रमुख लोग थे ये सब वहां पर बैठ करके कि भाई अपना कार्य 14 साल चल चुका है, इसके आगे इस कार्य को कौन सी दिशा देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, इस पर विचार करने के लिए 8 दिन की लगातार बैठक। और उस बैठक का नियम होता था कि कोई भी विचार अगर करना है तो सब लोग मुक्त होकर के बातचीत करें। वास्तव में डॉक्टर साहब ने एक ही चीज हम लोग को दी है, वो ये है कि किसी भी संगठन को अगर चलाना हो तो सबसे पहले 5-7-8 लोगों की एक केंद्रीय टोली बनाओ, किसी भी विषय के ऊपर उसके अंदर मुक्त होकर के चर्चा करो। किसी के मन में इस प्रकार का ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये बात कहूं कि नहीं कहूं,
अगर मैं कहूंगा तो कोई दूसरा आदमी नाराज तो नहीं हो जाएगा, अगर मैं ये कहूंगा तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसा मन में सोचने का करेंगे। अपने मन का जो विचार है वो ठीक प्रकार की भाषा में बिना किसी प्रकार की कोई आरोप करते हुए अपनी बात रखो। मैं हमको ऐसा लगता है तो इसमें क्या होगा कि एक विषय हम लोग लेंगे, उस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति मुक्त होकर अपने विचार रखेगा और सबके विचार सुनने के बाद जो सामान्य समझ उसमें से उभरेगी वो डॉक्टर साहब बताएंगे और उसको सबको मानेंगे। इस प्रकार एक विषय पर चर्चा होनी चाहिए। उसी में आज की हमारी प्रार्थना नहीं है भगवान तो तैयार है, लेकिन ये प्रार्थना जो थी वो उसी के अंदर हमारे यहाँ पर क्या नहीं, तब तक तो हिंदी और मराठी में प्रार्थना सारे देश में चलती है। नमस्कार था अक्सर मातृभूमि प्रार्थनाएं तो उस समय और गुरु जी करके थे, उन्होंने संस्कृत को उसको किया, उसके अंदर आवश्यक संशोधन करके उसको उसने स्वीकार कर लिया। वहां पर एक विषय ऐसा निकला जिस विषय के ऊपर और गुरु जी और अप्पाजी जोशी के बीच में जरा बहस हो गई। तो अप्पाजी जोशी की अपनी बात बड़े आग्रह के साथ रख रहे थे और गुरु जी की अपनी बात बड़े उतनी आग्रह के साथ में रख रहे थे। दोनों अपने अपने तरफ बड़े सरल तरीके से दे रहे थे और ऐसा करके थोड़ी गर्मागर्मी हुई। डॉक्टर साहब ने इसको चलने दिया। अंत में जब चर्चा पूरी हो गई तब डॉक्टर साहब ने जो सामान्य निष्कर्ष निकाला वो निष्कर्ष थोड़ा बहुत ये और अप्पाजी जोशी के कथन से मिलता जुलता था, उनके पक्ष का, लेकिन निर्णय हो जाने के पश्चात पूरी उसको स्वीकार कर दिया। उन्होंने ये कहा मेरी बात नहीं मानी गई, जाओ नहीं मानी हम चले, ऐसा नहीं कहा। बाद में अप्पाजी को अलग ले जाना और डॉक्टर साहब ने कहा अप्पाजी माधव के साथ में आज आपकी बातचीत हुई, गर्मागर्मी नियंत्रण चलने दिया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे लगे। अप्पाजी ने कहा कि नहीं बहुत ही विद्वान है, अनेक विषयों का बड़ा ज्ञान है, अपनी बात तर्कशुद्ध पद्धति से रखते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद उसको उतने आनंद के साथ स्वीकार करें। तब उन्होंने कहा अप्पाजी इनको अगर भावी सत्संग चालक के रूप में देखना तो कैसा रहेगा। अरे साहब क्या करें, आपको तो बहुत दिनों तक रहने वाले हैं। उन्होंने कहा वो तो ठीक है जब तक रहेंगे, लेकिन पहले से सावधानी बरतने की आपत्ति है क्या। नहीं, आपका चयन बिल्कुल ठीक है, ये हमारे लिए अच्छे सत्संग चालक होंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अप्पाजी आपसे यह सुन करके मेरे मन का बोझ उतर गया। और उसके बाद फिर बाद में जब 1940 का समय शिक्षा बढ़ाया तो उस समय गुरु जी वहां पर सर्वाधिकारी और जब डॉक्टर साहब वहां से आए तो बीमार होकर के आए पुणे से और डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप मत जाइए। क्या था, ब्लड प्रेशर था। आजकल ब्लड प्रेशर आपको बहुत सामान्य लगता है, ब्लड प्रेशर बाद गोलियां खानी उसको ये कर दिया तो चारा कर दिया, तो उस समय पर किसको पता नहीं था। और ब्लड प्रेशर अगर होता तो फिर बाद में वो नंबर पंक्चर करते थे, यहाँ सुई से घुसेड़ते थे, उसमें से सारा और पदार्थ निकाला करते थे, तो उनको ब्लड प्रेशर था। इसलिए उनको कहा गया कि आपको जानना नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब का तो मंत्रा पड़ा था, सभी शिक्षा में नहीं आ सकते। आखिरी दिन और वो जो है हट करके गए और आखिरी उनका जो दीक्षांत भाषण हुआ जो उसके जीवन का अंतिम भाषण था, दिगाई का भाषण। उस दीक्षांत भाषण में उन्होंने कहा कि इस बार आप सब लोगों से और मैं मिल नहीं सका, मेरी अस्वस्थता के कारण मैं आ नहीं सका, आप सबसे मैं परिचय नहीं कर पाया। आज देखिए हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से स्वयंसेवक बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। मैं हिंदू राष्ट्र का एक छोटा सा रूप अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। यह एक छोटा सा भाषण उन्होंने ऊपर दिया और उसके बाद जाने के बाद फिर उनकी स्थिति बिगड़ती गई और 19 जून को जब डॉक्टर ने कहा कि नंबर पंक्चर करना है तब वो समझ गए कि डॉक्टर समय निकट आ गया। इसलिए डॉक्टरों के जाने के बाद उन्होंने को बुलाया और बुला करके कहा कि देखो भाई ये कार्य आगे तुमको संभालना है, पहले इसको स्वीकार करो, फिर इस शरीर के साथ जो कुछ करना होगा। मुझे सवाल क्या करें, आप ठीक हो जाएंगे, नासिक में थे वहां भी ठीक हो, यहाँ
मुस्कुराए मैंने कहा तो ठीक है, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और दूसरे दिन वो चले गए। और चले जाने के बाद फिर 13 ही के दिन और भारतीय नागपुर प्रांत के संघ चालक ने एक घोषणा की कि परम पूजनीय डॉक्टर साहब की अंतिम इच्छा के अनुसार महादेवराव सदाशिवराव गुरुवलकर अपने नए सरसंघ चालक होंगे। अब हम इनको ही डॉक्टर साहब के स्थान पर देखेंगे और इसलिए मैं अपना सबसे पहला प्रणाम अपने नए सरसंघ चालक को समर्पित करता हूं। और उन्होंने पूज्य गुरु जी को अपना प्रणाम समर्पित किया। गुरु जी ने छोटा सा भाषण दिया कि डॉक्टर साहब जैसी महान आत्मा के सामने जो नतमस्तक नहीं हो सकता वो वास्तव में दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब ध्येय रूप हो चुके थे और इसलिए डॉक्टर साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम डॉक्टर साहब जैसे ही बने, शिवो भूत्वा शिवम यजे, ऐसा कह करके और उस दिन 13वीं का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। और इस प्रकार अपने देश को नए सरसंघ चालक मिले। तो पूजनीय गुरु जी सरसंघ चालक बन गए। उसके बाद क्या हुआ इसका विचार कर रहे। एकता मंत्र कई આપણો આદિ વ્યાખ્યાન એક પંક્તિ બોલો આંગિક ગ્રામ यं वैदिका मंत्र दृशः पुराण यं वैदिका मंत्र दृशः पुराण इंद्रं यममादरिष्वानवाहो वेदात्रियो निर्वचनीयमेवं यं ब्रह्म सत्येन निगेसन्ति शैवायमीशं शिवैर्यभोजम् આવતીકાલે બરાબર રાત્રે 9 વાગે આ જ સ્થાન પર વ્યાખ્યાનમાળાનો બીજો દિવસ પ્રારંભ થશે. બાર શ્રી ગુરુજી સમગ્ર જેની મૂળ કિંમત 2000 રૂપિયા છે તે આપણને 1500 રૂપિયામાં મળશે અને એ પ્રમાણે શ્રદ્ધાંજલિ નામનું પુસ્તક જેની મૂળ કિંમત 600 રૂપિયા છે તે આપણને 500 રૂપિયામાં